Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to again human computer interaction, lecture number 9. The topic of today's lecture, cognitive process. Now, a few lecture ago, we discussing our cognitive framework. हमने कॉग्निटिव प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 6 में कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स डिफरेंट कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ा था, बट आज हम कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने बेसिकली फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आई का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और जब किसी चीज को परसीव किया जाता है तो वो किस तरह प्रोसेस या रिएक्ट करती है, और उस टेक्स्ट या इमेज या उस फॉर्मुलेटेड जो डिफरेंट एंगल्स में वो इमेज परसीव होता है उसका हम डिसीजन कैसे करते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। तो ह्यूमन आई फिजियोलॉजी के अंदर हम विजन के बारे में पढ़ रहे थे। विजन इज अ प्राइमरी सेंस, ये प्राइमरी रिसोर्स है, प्राइमरी इनपुट है किसी भी चीज को परसीव करने की। इसके जरिए से हम इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं। लाइक दैट, अगर हम कंप्यूटर से बात कर रहे हो तो इसमें विजन का रोल जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि the vision can focus of this thing and perceive this image to retina of your eye, and some parts of human eye, they have to work and process of this image, उस इमेज के ऊपर वो प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद वो कोई ना कोई रिएक्ट करते हैं। तो विजन के अंदर हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहले कलर थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा कि कलर बेसिकली इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर इम्प्रूविंग द इंटरफेस डिजाइन। किसी चीज का डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए कलर थ्योरी जो है ये बेसिक एंड प्राइमरी कंसर्न होता है।
और किसी इंटरफेस की परफॉर्मेंस को रिड्यूस करने के लिए भी इसका बहुत एक प्राइमरी कंसर्न होता है। तो कलर थ्योरी के अंदर बेसिकली हमने there are three types of color theory in the world. First of all, we will discuss the primary color. The primary color depends upon the red, yellow, and a blue. These three pigment colors can be used in a primary color, and then we will discuss the secondary color. The secondary colors are a mix of these three pigment colors, जो कि प्राइमरी कलर के ये तीनों कलर्स थे, इनके कॉम्बिनेशन से इनको जब मिक्स किया जाता है, then we will make to be secondary color. The secondary color are a green, orange, and purple. These are combination of these basic three colors: red, yellow, and blue. Then we will discuss the tertiary colors. The tertiary colors is a mixed on, the one is a primary color and second is a secondary colors. They have mixed, and then we will make the tertiary colors. The tertiary color is a yellow orange. These are a combination of primary and a secondary color. Red orange, red purple, blue purple, blue green, and yellow green. In the color theory, we will discuss the color harmony. Color harmony is a basic and a big part of the color combination. The color harmony is the parts of colors. They have mixed each other, then make a new color. A color harmony is the depends upon, ये बेसिकली एक फार्मूला है जो कि डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स के ऊपर एक मिक्स किया जाता है, तो उससे कुछ कलर्स जनरेट होते हैं, उसको आप कलर हार्मनी बोलते हैं। इसमें जिसमें हमने एनालॉजस ऑफ कलर के बारे में पढ़ा, कंप्लीमेंट्री कलर्स पढ़े, then we will discuss the color context. Color context depends upon the background of the colors. If you have draw the rectangle, this rectangle color is in the form of the black, and you can use some little bit rectangle in the form of red color. आप different colors जो है किसी कलर के बैकग्राउंड के तौर पे यूज करते हैं, तो उस कलर का जो कंट्रास्ट होता है वो कुछ डिफरेंट वे में इफेक्ट होता है। वो डिफरेंट
वेवलेंथ में शो करता है, बट द कलर्स brightness is colors mixing level is the same, but the brightness is in the form of the different. These are basic color theory we will discuss in a previous lecture. And then we will move to the another topic, 3D and 2D vision. The vision is the perception of any image, जो कि हमने आई फिजियोलॉजी में पढ़ा कि 3D इमेज जो है give an immediate perception of depth on the basis of different points of view of the two eyes. दोनों आंखों के डिफरेंट व्यूज से जो इमेज परसीव होता है उसकी आफ्टर दैट प्रोसेसिंग यू कैन जनरेट अ फाइनल डिसीजन, उसको आप 3D इमेज कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब हम इमेज को देखते हैं तो हम इसको 3 डायमेंशन में परसीव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss, we need to know the how the 3D image created. ये 3D इमेज जो है ये क्रिएट कैसे होता है कि दोनों आईज इसको डिफरेंट वे में जो है परसीव करती हैं, और फिर उसके बाद जो है आफ्टर दैट प्रोसेसिंग the human eye is decided that what is this, ये क्या है। 3D and 2D जब ये इमेज प्रोसेस होता है तो इसके कुछ डिफरेंट क्लूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लूज, वीकर क्लूज एंड अ स्ट्रॉन्गेस्ट क्लूज। उसका साइज किस लेवल पे था, वो कितनी डेप्थ में था, क्या उसका जो है अपेरेंस साइज था। तो हम उसको जब डिफरेंट क्लूज में देखते हैं तो उस इमेज का साइज डिसाइड होता है। फिर उसके बाद हमने रीडिंग के बारे में पढ़ा कि रीडिंग इज अ बेसिक पैटर्न ऑफ परसीविंग। किसी भी चीज को परसीव करने का बेसिक विजुअल पैटर्न जो है वो रीडिंग होता है। हम बेसिकली किसी भी चीज को जब परसीव करते हैं तो हम उसको बेसिकली रीड कर रहे होते हैं। Then we will discuss shortly
हेयरिंग। हेयरिंग जो है, इसमें एयर फिजियोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ा था हमने, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि इसकी कुछ एयर का जो स्ट्रक्चर है, आउटर एयर होता है, मिडल एयर होता है एंड इनर एयर होता है, जो कि ऑडिटरी प्रोसेस को, किसी साउंड को परसीव करता है। Now, today's lecture, आज के लेक्चर जो है इसके अंदर हम क्या चीज पढ़ेंगे? Attention and a memory. These are two basic concern of today lectures. आज के लेक्चर के अंदर हम attention के बारे में पढ़ेंगे। Attention is a basically processing, focus, and memory. Memory is a recalling or a remembering of anything. किसी चीज को याद रखना memory कहलाता है। These two basic topics we will discuss in a cognitive framework. हमने cognitive frameworks के अंदर ये दोनों चीजें जो हैं इनके बारे में पढ़ा, जब हमने दो मॉडल्स पढ़े थे cognitive framework के अंदर, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और ह्यूमन प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें दो बेसिक कंसर्न थे हमारे, प्रोसेस और मेमोरी। प्रोसेस और मेमोरी जो है, इन दोनों मॉडल्स में हमने प्रोसेस और मेमोरी के बारे में पढ़ा। अटेंशन जो है, जब हम किसी से भी, किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं उसमें अटेंशन इन्वॉल्व होती है। अटेंशन मॉडल्स डिस्कस करेंगे एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अटेंशन। What is attention? Attention is ability of a mind to focus on one thing at a time. एक वक्त के अंदर जब आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं उसको आप अटेंशन बोलते हैं। At the same time, you can perceive the different stimuli. आप different stimuli को देखते हैं, but in these stimuli you can focus on one stimuli. आप किसी एक के ऊपर फोकस करते हैं, this is attention. You can select of this stimuli. आप किसी एक stimuli, किसी एक चीज को, इमेज को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं, this is attention. Attention, there are two types of attention: visual attention and auditory attention. Visual attention based on location, based upon color. आप जो विजुअल परसेप्शन है, विजुअल अटेंशन है, ये दो बेसिक जो है इनके ऊपर डिपेंड करती है लोकेशन, कि वो किस लोकेशन पे है और उसका कलर क्या है। एंड ऑडिटरी attention based upon the pitch, sound, intensity and a timbre. These are two visual attentions and auditory attentions. But
Color can be a powerful tool to improve the user interface. Attention में कलर जो होता है ये बेसिक एंड बिग रोल होता है. There are two models of attentions can be used in cognitive process. किसी चीज को जब हम cognitive करते हैं, perceive करते हैं, उसके दो मॉडल्स होते हैं. Focused attention and divide attention. Like that, focus attention. अगर आप एक वक्त के अंदर एक ही पर्सन से, उसी टाइम के अंदर एक ही पर्सन से आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप फोकस अटेंशन पे हैं. अगर आप एक ही वक्त के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसको आप डिवाइड अटेंशन कहते हैं. Like as you can drive a car, at this time you can see the road front of your screen and another person take a side of the seat, और एक और साथ आपके बैठा है, आप उससे भी बात कर रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, रोड की तरफ भी देख रहे हैं. This is a divided attention. Like this, focus attention, your senses can be a focus of one thing at the same time. वो शॉर्ट टाइम के अंदर उसी एक इमेज के ऊपर फोकस करते हैं, और after that processing to perceive the result and divide attention at the same time. You can have possible activities perform at that time. आप उस वक्त के अंदर सेम टाइम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं. Focus attention is a voluntarily and involuntarily. These are two focus attention factors. Classified the focus attention in the term of voluntarily and involuntarily. Voluntarily means कि आप एक रूम के अंदर हैं और आप कुछ सुनने की ट्राई कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा. इट इज अ वॉलंटरली. इनवॉलंटरली मीन्स कि आप कोई काम कर रहे हैं, पीछे से कोई आप सॉन्ग वगैरह आप सुन रहे हैं. मीन्स इनवॉलंटरली किसी ने रेडियो चला दिया, कोई और टाइप सॉन्ग जो है वो प्ले कर दिया, इनवॉलंटरली करा. Focused attention, there are factors affecting the ability of attention focus. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी की एबिलिटी अटेंशन फोकस को ट्रैक करने के लिए या ट्रैक करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल,
मीनिंगलेस, मीनिंगफुलनेस, कि उसका बेसिक पर्पस कोई मीनिंगफुल होता है, तो आप बड़े फोकसली उस चीज को देख रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ डिस्प्ले, उस रिजल्ट का जो डिस्प्ले है वो बड़ा स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में होना है। योर फोकस इज ऑटोमेटिकली ऑफ दिस रिजल्ट। यूज ऑफ कलर, कि उस इंटरफेस का कलर बहुत इफेक्टिव है। योर फोकस इज ऑटोमेटिकली ऑफ दिस इंटरफेस। यूज ऑफ मॉडलिटीज, किसी एक फॉर्मल वे में डिस्प्ले होना है, मॉड्यूलर फॉर्म में डिस्प्ले होना है, लाइक दैट। प्लीज शेयर द आंसर ऑफ दिस स्क्रीन। ये एक एग्जांपल है, इसमें 2 स्क्रीन्स हैं, दोनों स्क्रीन्स के अंदर रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है। फर्स्ट स्क्रीन कैन बी शो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चराइज्ड रिजल्ट, another is a jumble of information। आपकी अटेंशन किस स्क्रीन पे जाएगी? ऑटोमेटिकली। जी, आंसर कीजिए। मेरे मुताबिक जो है, जो फर्स्ट स्क्रीन है वो एक फॉर्मलाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर फॉर्म में उसने रिजल्ट डिस्प्ले किया है, तो आपकी अटेंशन जो है वो फर्स्ट स्क्रीन पे जाएगी। अटेंशन एंड ऑटोमेटिक अटेंशन एक्शन। Frequent activities become automatic, carried out without conscious attention। आप चाहते हुए और ना चाहते हुए भी आपकी एक अटेंशन जो है उस पर जाती है। Like that, you can perform the regular task, you click off the cross। आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और आपने क्लिक कर दिया, तो एक आपके सामने एक पॉप बॉक्स जो है वो अपीयर होता है, लाइक दिस। उसका ऑटोमेटिकली फोकस जो है वो सेव पे होता है, बट आप सेव नहीं करना चाह रहे हैं, और वो आपसे ऑटोमेटिकली पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू आर मेड। जो आपने चेंजेस की हैं उसको आप सेव करना चाहते हैं वो, और ऑटोमेटिकली उसके सेव के ऊपर उसका ऑप्शन क्लिक होता है। यू कैन एंटर दिस इंफॉर्मेशन इज अ सेव। वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाती है। ये बेसिक जो है हमारे कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस थे, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी कॉग्निटिव प्रोसेस के। हम कोई इंटरफेस जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे वे में करेंगे तो यूजर की अटेंशन राइट प्लेस पे जाएगी, एक्यूरेट जगह पे जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहलाते हैं? लाइक दैट, डिजाइन टू असिस्ट द अटेंशन फोकस इन द राइट प्लेस। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई इंटरफेस डिजाइन हुआ है और उसकी अटेंशन ऑटोमेटिकली राइट प्लेस पे जाए, attention his and her task, not to the interface. Decide what to focus on the based on their task of interest, etc. To stay the focus, do not provide the unnecessary distractions. Structure his or her tasks. Create a distraction when the really necessary. Use alerts
आप उसका डिजाइन ऐसे स्ट्रक्चराइज्ड कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली उसकी जो है अटेंशन राइट प्लेस पे जाती है. लाइक दैट यू कैन यूज द टेक्निक्स stand out of color like ordering spacing, underline, sequence and animations. आप क्या कर देते हैं, कलर बहुत अच्छा यूज करते हैं, सीक्वेंसिंग एनिमेशंस अच्छी लगाते हैं, अवॉइड द कल्टरिंग एंड इंटरफेसेस. आप कल्टरिंग से जो है अवॉइड करते हैं, उसका डिजाइन जो है वो सिंपल बनाते हैं. Avoid using too much colors because the software allows it. आप उतने ही कलर यूज करें जितने उस इंटरफेस ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है परफेक्ट आते हैं. Avoid the cluttering the interface. Like that you can use the google.com. आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा. जी, गूगल. Why you can frequently use the Google? आप गूगल को फ्रीक्वेंटली क्यों यूज करते हैं? Because the Google interfaces are very simpler, the user friendly. आप उसको easily understand करते हैं. And second example, मैंने कहा कि आप एक्स्ट्रा कलर्स यूज ना करें ताकि आपका जो फोकस मेन फोकस है उससे हट के आपकी अटेंशन जो किसी और पे न चली जाए. Like that our situation state the bad news, be clear, don't try to obscure the situation. हमारा जो मेन फोकस था वो टेक्स्ट था, बट इसका कलर और बैकग्राउंड इतना इफेक्टिव है कि आपके पहली ही अटेंशन जो है वो बैकग्राउंड पे जाएगी. आप ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करें. And other topic is a memory. Memory involves the encoding and recalling knowledge and acting appropriately. मेमोरी जो होती है ये किसी चीज को इनकोड करती है, इनकोड करने के बाद प्रोसेस करने के बाद किसी जगह एक टेम्परेरी तौर पे या लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो उसको सेव करती है. बट इन नेचुरल सिनेरियो वी डिड नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग. आप हर चीज को जो है वो याद नहीं रख सकते. आप फिल्टरिंग करते हैं, जो चीज याद रखने वाली होती है आप उसको याद रखते हैं और दूसरी जो है आप निग्लेक्ट कर देते हैं. लाइक दैट मैं आपसे ये पूछूं 15 दिसंबर 2017 आपने क्या किया? आप प्रोसेस करने के बावजूद भी आप नहीं बता पाएंगे. मीन्स के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि याद रखी जाती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो याद नहीं रखी जाती. Context is important in affecting our memory. जो context होता है, selections of information होती है, this is a basic role of your memory. आप उस इंफॉर्मेशन की सिलेक्शन करते हैं, जो कि चीज याद रखने वाली होती है आप उसको याद रखते हैं और दूसरी को निग्लेक्ट कर देते हैं.
But in memory, cognitive frameworks we will discuss in the lecture number 6. There are two main memory cognitive frameworks. First of all, we will discuss the human information processing model, and second is human processing models. In human information processing model, we will use to encode or input of anything, and then we will comparison of this input, and after the comparison of this process we will decide of response selection. हम उसका रिस्पॉन्स सिलेक्शन करते हैं और फिर हम उसकी रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन करते हैं. After that, some researchers can research of this model and add something. उसमें कुछ ऐड किया जिसको अटेंशन और मेमोरी ऐड की इस मॉडल के अंदर, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं. Another model is human processing model. Human processing model is basically, there are three basic concepts of this model: perception system, motor system and cognitive system. इसके अंदर हमने ये तीन सिस्टम डिस्कस किए थे. A model of memory. A model of memory, they have share these three things. ये तीन चीजों के मिल के मेमोरी मॉडल जो है ये बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंसरी मेमोरी. सेकंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. सेंसरी मेमोरी इज द इनकोड ऑफ एनीथिंग. किसी चीज की इनकोड जो होना है, इनपुट होनी है, उसको आप सेंसरी मॉडल, सेंसरी मेमोरी के अंदर प्रोसेस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल लिंक दिस मेमोरी इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अ स्टोर समथिंग. कुछ टाइम के लिए वो उसको स्टोर करती है, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो एक्वेस्टिक हो, कोई साउंड हो, ऑडियोटरी हो. एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर द फैक्ट्स एंड मीनिंग्स सिमेंटिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको सेव करती है. रिवाइज्ड मेमोरी, वर्किंग मेमोरी इज अ सबसेट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. लाइक दैट, ये एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में जो है ह्यूमन मेमोरी मॉडल जो है इसको शेयर किया है. सेंसरी मेमोरी, working memory and a long-term memory. These are basic three components they have involved, and then make to decide that. अब ये revised human processing model and related to memory, जो ये extensive model है, revised memory model, ये basically belongs करता है human information processing model, human processing model से, जिसके अंदर हमने परसेप्शन प्रोसेस, मोटर प्रोसेस और कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ा था. तो सेंसरी मेमोरी इज बिलोंग्स टू द परसेप्शन मॉडल, परसेप्शन प्रोसेसिंग, जिसमें हम विजुअल इमेज स्टोर या कोई ऑडियोटरी इमेज या कोई भी स्टिमुलस जो है उसको परसीव करते हैं. एंड देन द मोटर प्रोसेस इज अ वर्किंग, बट इन रिलेटेड टू द मेमोरी, द वर्किंग मेमोरी एट दिस स्टेज. एंड देन cognitive process is like as a long term memory. तो ये like as a human processor model memory जो है ये वर्क करती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये कुछ सिस्टम्स को जो है डिस्प्ले द फॉर्म शुड मैच द मेमोरी सिस्टम यूज टू परफॉर्म द टास्क. किसी चीज को परसीव करती है
और उसको जो है रैपिडली एक्सेस करती है, और रैपिडली एक्सेस करने के बाद जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसीड करने के बाद प्रोसेस शो करती है। लाइक दैट इन शॉर्ट टर्म मेमोरी यू कैन यूज द एटीएम। आप कोई एटीएम यूज करते हैं, एटीएम में जब आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन कोड देते हैं, प्रोसेसिंग के बाद वेरी shortly ATM machine can provide the ATM card of user before the cash से पहले वो ATM कार्ड जो है उसको प्रोवाइड करती है, ताकि आपका उस वक्त अटेंशन फोकस जो होता है वो कैश के ऊपर होता है, और आपका वो टास्क परफॉर्म होने के बाद आप ATM कार्ड ना भूल जाए। इन शॉर्ट टर्म मेमोरी यू कैन यूज सम पैटर्न्स। आप कुछ पैटर्न्स यूज करते हैं ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। लाइक दिस, आपने ये देखा होगा CNIC का कुछ पैटर्न, सिलेक्टेड पैटर्न है। आपके मोबाइल नंबर जो है उसका एक पैटर्न है। लाइक दैट ऊपर एक फिगर दिया गया है, इसको आप याद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन उसी इंटीजर्स को आपने एक चंक्स की फॉर्म के अंदर जो है फॉर्मुलेट किया, तो उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान होता है। लाइक दिस, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर दो इफेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जब काम करती है तो इसमें दो इफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट्स, एंड सेकंड हम उसको कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट्स। रिसेंसी इफेक्ट्स जो होता है, बेटर रिकॉल फॉर आइटम्स at the end of all listed because these items are still active in short term memory। आपके सामने जब कोई पैटर्न ड्रा किया जाता है तो उसके जो लास्ट फिगर्स होते हैं उसको आप रिसेंसी इफेक्ट्स कहते हैं, उसकी बिहाफ पे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिकॉल करते हैं। और प्राइमेसी इफेक्ट्स जो होते हैं, बिकॉज आइटम्स बिगिनिंग एट द लिस्ट these items have a rehearsed more frequently। कुछ पैटर्न्स बार बार रिहर्सल हो रहे होते हैं, आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस इफेक्ट से भी उसको याद रखते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है, ऑर्गेनाइज द नेटवर्क कनेक्टेड द चंक्स ऑफ द नॉलेज। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आप उसको एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में रख लेते हैं, सिमेंटिक मेमोरी के अंदर रखते हैं, या फिर आपको ये डायग्राम जो है एक पूरी हायरार्की सेट कर लेते हैं जिसके जरिए आप उसको याद रख सकते हैं। लाइक दैट सिमेंटिक नेटवर्क्स, आप एक पूरी हायरार्की रेडी करते हैं जिससे आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं। लाइक दैट एक स्ट्रक्चर है ये एनिमल, उसके बाद आगे आप देखें डॉग्स, फिर शीप डॉग्स, हाउंड, ये पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर है। इसको देखते हुए आप एक स्केच बनाते हैं, सिमेंटिक नेटवर्क बनता है जिससे आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं। या फिर आप उसको फ्रेम करते हैं। मॉडल्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी यू कैन यूज अ फ्रेम। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इन द डाटा स्ट्रक्चर्स, आप उस इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म के अंदर फ्रेम में जो है वो रखते हैं। स्लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इंस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंस ऑफ द डाटा टाइप्स ऑफ, आप क्या कर लेते हैं, उस फैमिली को एक रेक्टेंगल में एक फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर जो है फ्रेम करते हैं, तो आप उससे भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के थ्रू जो है याद रख सकते हैं। दीज आर, ये कुछ आज का आपका जो है बेसिक टॉपिक था जिसके अंदर हमने कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ा। कॉग्निटिव प्रोसेस में हमने अटेंशन के बारे में पढ़ा, अटेंशन फ्रेमवर्क्स, और
फिर उसके बाद हमने मेमोरी, और मेमोरी के अंदर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। आज का आपका लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे।